they have their own problems. We've maintained a good relationship with Myanmar. मगर 100% solution नहीं होता है ऐसी चीज़ों में. तो क्योंकि वहाँ क्रैक डाउन हो रहा है, these people are coming into मणिपुर, मिज़ोरम. अब मिज़ोरम में आई बिलीव 30,000 रेफ्यूजी रजिस्टर है कि 30,000 लोगों की रजिस्ट्री है कि एज रेफ्यूजीज आए हैं ओवर द ईयर्स या अभी रिसेंट में? अभी मोर रिसेंटली. हाँ, मगर मणिपुर में ऐसा नहीं है, यू नो, बिकॉज इट्स ऑल इलीगल इन्फिल्ट्रेशन. अब वो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन में ना, these are not citizens of India. You know, so let's make it very clear. When I talk about illegal infiltration, they might be cousins of cookies or this or that. They are not cookies. In terms of, they are not the same people as we have on this side of the border. They are our people. Cookies are our people. But, you know, they feel that proximity कि हम जा सकते हैं. काफ़ी sympathizers भी हैं जो कहते हैं कि नहीं, you know, they should be allowed to settle it. अरे भाई, आप रिजर्व फॉरेस्ट एरियाज में कैसे सेटल हो सकते हो? आप इलीगली अगर आओ तो आपको कौन रहने देगा? आप अमेरिका जा सकते हो विदाउट अ वीज़ा? नहीं जा सकते हो ना. तो और ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि मैतीज के पास अपने लैंड के ऊपर वो वाला कंट्रोल नहीं है जो ट्राइबल्स का है. करेक्ट. तो क्या होएगा कि आई थिंक द लार्जर क्वेश्चन हियर इज एवरीबडी हैज़ टू थिंक अबाउट एवरीबडी एल्स. यू नो, कुकीज़ को भी सोचना चाहिए कि भाई डेमोग्राफिक चेंज तो होएगा, और डेमोग्राफिक चेंज होएगा, इट विल, यू नो, द अदर ट्राइब्स विल फील थ्रेटेंड. यू नो, अब अदर ट्राइब्स फीलिंग थ्रेटेंड, यू नो, व्हाई शुड दैट नॉट बी द केस? You know, मेरे, you know, in Delhi, if we start having a massive demographic change, we will also feel that, you know, is it going to harm us in some way, this, that. Also, the other fact is that this is a question of national security. The kind of people coming in through infiltration, you know, how do you know who they are? How do you know they're not people who have been trained in China? This has happened before. ऐसा तो है नहीं, ये पहले नहीं हुआ है. You know, Naga insurgents used the route given in Myanmar to go to China to have meetings. So this is not a new thing. So we cannot see, it's not a question about हमारे cousins हैं, हमारे relatives हैं. Relatives मेरे भी घर में आते हैं. They don't dip into my bank account and they don't dip into, like, you know, my resources, and they don't stay there forever. वो वापस चले जाते हैं. You know, so we have to keep this perspective in mind कि हमारी national security can never be, you know, questioned. That comes above and beyond religious differences, ethnic differences, cultural differences, anything else. That has to come first. Now, if we move with that point of view in mind, then automatically you have a clear stance on infiltration. बहुत सारी चीज़ों पे. Yeah. तो ये अब जो बात हो रही है कि ये इसका जेनेसिस रिसेंट, मतलब क्या स्पार्क था जिसकी वजह से ये सब हुआ, उसके बारे में थोड़ी बात करना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का जो जजमेंट है. सी, हाई कोर्ट का जजमेंट नहीं था. अच्छा, रिकमेंडेशन, सजेशन था. यू नो कि वी सजेस्ट दैट यू कंसिडर रिकमेंडेशन और इंक्लूडिंग देम इन द शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट. whether the high court, whether this was the high court's job or not, a legal person can tell you better. From my point of view, कोई दिक्कत नहीं यार. I mean, we can recommend, we can suggest, because that is not the end of the process. State government ऐसे नहीं decide कर सकता है. अच्छा, उसके बाद में भी NCST जाएगा, you know, Tribal Research Institute का, TRI का कुछ input होएगा. You know, there'll be many different levels that it will have to go through for us to, for the central government to include it. Include a group in the scheduled tribe list. अच्छा, फिर contest भी होएगा, I'm sure. You know, तो ये कोई overnight process तो है नहीं. This is a long. तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो vested interest हैं, उनका कहीं ना कहीं, जैसे CA में हमने देखा था कि वो मिस गाइड किया गया, लोगों को प्रोपेगेंडा फैलाया गया, तो उसको मतलब पूरा तरीके से एकदम उसके बारे में लोगों को पता नहीं था, बट उसका नेगेटिव परसेप्शन बन गया. तो ये भी कहीं ना कहीं एक लगता है कि करेक्ट, बिकॉज आप देखिए गोल पोस्ट बदल चुका है. स्टार्टेड विद शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट इंक्लूजन एंड देन वेंट ऑन टू वी वांट 6th शेड्यूल. ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वाला डिबेट चालू हो गया. हाँ, तो मतलब आपने चालू कहाँ से किया है, जा कहाँ रहा है? यू नो, आई मीन, व्हाट इज द गोल पोस्ट?
what is it that you wanted to achieve? Number two, I have also heard on ground, I'm not sure if, I've heard it on ground, I haven't seen it myself, that there were people who were armed with automatic weaponry in lungis. Alright, lungi इस साइड पे नहीं पहनते, ये म्यांमार के साइड पे पहनते हैं. So, has infiltration played a role? मैंने उस ट्विटर पे भी थ्रेड देखा है, वो जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं उन्होंने लिखा था. Correct. See, I am in full support of the cookies when they say we want development, we want we want what Imphal has, we want equal opportunities. I'm in full support. Why should they not have it? I am not in support if you ask for a separate state. I am not in support if cookie groups don't lay down their arms. Dissent cannot turn into anarchy. आप प्रोटेस्ट करिए, ये आपका हक है. ये कुकीज़ का भी हक है प्रोटेस्ट करना, मगर सेम वे मैतीज़ का भी हक है टू डिमांड फॉर अ शेड्यूल ट्राइब इंक्लूजन इन द शेड्यूल ट्राइब लिस्ट. डिमांड करने से कौन रोक सकता है? अब आपका रिएक्शन ऐसा होएगा. और इसमें अंतर क्या है अभी, क्योंकि रिजर्वेशन की जब तक बात आती तो वो कहते हैं कि SC OBC में मिलता रहा है मैतीज़ को, तो ये शेड्यूल ट्राइब ST स्टेटस स्पेसिफिकली क्यों मांग रहे हैं? लैंड की वजह से. आपको लैंड भी मिलेगा. शेड्यूल ट्राइब्स का रिजर्वेशंस होता है एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में, so on and so forth. वो भी आपको बेसिकली व्हाट द मैतीज से इज वी वांट अ लेवल प्लेइंग फील्ड. सही बात है. कि हमको प्रिविलेज नहीं चाहिए, हमको लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए. नहीं, लेवल प्लेइंग देखिए ना कितना मतलब सिमेट्री है कि 55% जो पॉपुलेशन है उसके पास 10% लैंड है राइट का. करेक्ट. अब इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स जो आ रहे हैं वो भी वो 10% पे ही खा रहे हैं. वो 10% पे भी खा रहे हैं, मगर फॉरेस्ट लैंड पे उनका हक है क्या? वहां पॉपी कल्टिवेशन हो रहा है. See, after this, one of the crackdowns was against drugs. Drugs is a huge problem, because drugs is what funds, terrorism, insurgency, things like that, Also, there was Manipur at one point of time had a rampant level of HIV, because of the amount of drug use at one point of time that was happening. क्योंकि heroin वगैरह आप तो you'll take it how do they say, you'll inject it, right? So one of the reasons was this, so they should be even more against any sort of any sort of drug transactions that are happening. So when the chief minister cracked down on ये poppy cultivation जो था, that time ये झगड़े चालू हो गए. तो ये ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट हुआ है, ये पिछले 2-3 महीने से चल रहा है. एंड इसमें हिस्टोरिकल एनिमोसिटी भी है. ऐसा नहीं है कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इन दोनों ग्रुप्स के बीच का? मतलब there isn't that sort of a background in terms of that there's always been clashing and for the same reasons. Okay. So ऐसा नहीं अनकंफर्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बना हुआ है यहाँ पे. एंड मैं तो ऑनेस्टली मैं सोचती हूँ हाउ इज इट पॉसिबल, because you are populations that have lived side by side. There was a point pre-independence where everybody had equal rights to all natural resources of the state. तो अब ऐसा क्यों है? एंड ये समझने की बात है because this country doesn't deserve it. हमारे पास हमारे और problems हैं that come from the outside that we have to deal with. We don't deserve our own brothers fighting with each other. अगर आप हिस्ट्री में जाओगे, इवन नागाज में देखोगे, तंगखुल जो ट्राइब है उसमें बड़ी सिमिलैरिटी, मतलब देयर इज रिस्पेक्ट दैट इज शोन मैती रिचुअल्स में, दैट इज शोन टू देम, वाइस वर्सा. There have been princesses from Manipur that have been married in Tripura. ऐसा मतलब इंटरैक्शन चलता ही गया. आप सोचो ना कैसे इंटरैक्शन नहीं होएगा अगर आप साइड बाय साइड रहे हो. कैसे कोई. डू यू थिंक कि एक सॉल्यूशन ये हो सकता है शायद, क्योंकि जो डिवीजन हुआ है स्टेट्स का, इट्स डन इन अ मैनर दैट इज नॉट पैलेटेबल टू एनीवन. सो मे बी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स boundaries might be a solution. From my point of view, मुश्किल है ये solution, because the average tribal is extremely connected to his land.
you know, is extremely emotional about it. You know, उनका सबसे ज़्यादा attachment उनकी ज़मीन से है. बट जमीन तो ठीक है, वो तो रह सकती है, बट इन मतलब क्या उनकी जो आज की आइडेंटिटी है, मान लो जैसे मणिपुरी है, क्या वो उससे भी उतना ही रिलेट करते हैं? Absolutely. So territorial integrity इन लोगों के लिए बहुत है. ओके. You know, so ये, you know, that change will be very difficult and I don't think that will be appreciated. अच्छा. You know, क्योंकि आप सोचो ना, अगर you say, oh, this is cookie land, मैती अग्री करेगा क्या? You know, अगर आपको अरे इम्फाल is only for मैतीस, कुकी अग्री करेगा, नागा अग्री करेगा, नहीं करेगा. So this will be a difficult proposition. हमारे पास एक ही solution है, that is, you know, we've been divided on so many levels, you know, religion and race and this and that. You know, we have to understand that as long as you're part of the same country, you know, you're an equal stakeholder and that should be priority in your mind. अब, you know, अब ethnic identity पे आप, you know, झगड़ा करना चालू करो, you know, तो इसका तो कभी end ही नहीं है ना. So civil society has to come to a consensus कि ऐसा violence is not beneficial. पिछले 5-6 साल 8 साल में जितना उनने डेवलपमेंट देखा है, परसेप्शन बदला है नॉर्थ ईस्ट का. 15 साल पहले कोई कहता था कि मैं नॉर्थ ईस्ट जाऊँगा छुट्टी के लिए, अब फैशनेबल हो चुका है कि हाँ लेट्स गो देयर फॉर ट्रैकिंग. ओ हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है, ओ आपने एसमीज खाना खाया है, ओ आई एम गोइंग टू अ नागा रेस्टोरेंट. इट्स द रेज, इट्स फैशनेबल, यू नो, एंड दैट इज़ व्हाट इट टेक्स कि आप मेन स्ट्रीम बनो. ये दिस इज़ व्हाट इट टेक्स. आप इफ़ यू रिमेंबर 80s में साउथ को भी नॉर्थ वाले बड़े डिस्टेंटली देखते वो थे. एक ही था ना, जैसे जो मद्रासी टर्म था, Correct. उसी से देखते उसी थे. से, एंड वो भी हमें अलग तरीके से देखते थे बिकॉज ऑफ दैट, यू नो, पंजाबी हो क्या, यू नो, दैट वाज द जनरल दिस थिंग. मगर जैसे उनका डेवलपमेंट हुआ, जैसे आईटी सेक्टर आया, जैसे दे बिकेम, you know, they came everywhere, you know, we started watching movies from there. 20 साल पहले कभी नहीं होता था, you know, that you went to watch a movie that came out of there. और लोग ये डिफरेंस समझते हैं, आंध्रा और कर्नाटका और तमिलनाडु बहुत अलग अलग चीजें. खाने का डिफरेंस, टेरेन का डिफरेंस, टूरिज्म का डिफरेंस, सब समझते हैं. मगर वो भी, when I was growing up, that I could see that difference happen. You know, the same way that difference in the Northeast has happened. Exactly. That, you know, no longer is the Northeast alien or its people alien. They're, for us, they're one of us. On the contrary, अब सब चाहते हैं कि वो सिनेमाज में प्रोजेक्ट हो, यू नो, लीड रोल्स में प्रोजेक्ट हो, यू नो, उस जगह के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बने, एक्टिविटी हो गई है, यू नो. सो आई थिंक दैट परसेप्शन हैज़ ऑल्सो कम बिकॉज ये गवर्नमेंट ने जितनी स्टेबिलिटी दी है ना, यू नो, उससे परसेप्शन बना है कि सेफ है, एंड बिकॉज सेफ है लोग जाते हुए हिचकिचाते नहीं है. मगर मणिपुर में ये वायलेंस के बाद आपको लगता है क्या कि वो परसेप्शन बदलेगा नहीं? टूटा तो है, और यू नो, वो हम सबके लिए टूटा है, you know, because that was, for somebody like me, that was my dream, you know, to be able to go into my own state, in my own state, because I think all states are my own states, but in my own country, and not see it in a state of conflict, you know. And what I started seeing it as was something that I saw it no different to any other place, like utni, you know, उतना ही हलचल था. अब वो परसेप्शन टूटा है, कितना टाइम लगेगा ये परसेप्शन को रिपेयर करने को, ये भी सोचने की बात है ना. सो दिस, द मणिपुरी सिविल सोसाइटी हैज़ टू थिंक अबाउट इट कि हमने अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए ये डेट्रीमेंट में है कि इससे हमें कुछ बेनिफिट मिला है. इसमें जो रिसेंट जो मतलब हैपनिंग्स हो रही है, जैसे अमित शाह जी ने अभी, होम मिनिस्टर ने मीटिंग लिया था, वहाँ पे गए थे और उन्होंने बोला था सरेंडर करने के लिए वेपन्स को, और 2 दिन का शायद समय दिया था, और वो आज ख़त्म हो रहा है शायद, या हो चुका है कल, पता नहीं. तो कल मैं देख रहा था कि लोग अभी भी फायरिंग कर रहे हैं और वो सब कर रहे हैं. तो मैं आपका ट्वीट देख रहा था कि दे हैव नो आइडिया व्हाट इज कमिंग फॉर देम, लाइक, तो क्या होने वाला है अभी इस किस स्थिति में, मतलब ये आपको जाते हुए दिख रहा है? सी, मैं सोचूंगी जब बिफोर द होम मिनिस्टर वेंट देयर, आई वाज ऑन डिबेट्स एंड मैं वहाँ ओवर एंड ओवर कह रही थी,
civil society will have a major role to play. Civil society will have a major role to play. एक बड़े स्कॉलर थे, उनसे मेरे को बड़ी डांट पड़ी क्योंकि उन्होंने कहा आप एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू में देखते हो ये वो फलाना ढिमकाना, मगर ऐसे नहीं होता, फोर्स से होएगा। फोर्स से नहीं होएगा, फोर्स से रिएक्शन बढ़ेगा। One of the best things that the Home Minister has done is under the guidance of the Governor, उन्हें एक सिविल सोसाइटी की कमेटी बनाई है, जिसमें सब स्टेक होल्डर्स रहेंगे, बिकॉज दे विल हैव टू कम टू सम सोल्यूशन। क्योंकि ये कौन है ऑन ग्राउंड, ये कोई सब, ऑफ कोर्स वी आर सीइंग आर्म मिलिटेंट्स वगैरह भी हैं, पर इसमें सिविल सोसाइटी भी अफेक्ट हुई है ना, इम्पैक्ट हुई है। और ये लोग कहाँ से है, ये लोग कहीं ठीक है, देयर माइट बी सम इन्फिल्ट्रेशन फ्रॉम म्यांमार, मगर फाउंडेशन तो हमने ही उन्हें दिया हुआ है ना। सो सिविल सोसाइटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होएगा। बट द कोम्बिंग ऑपरेशन दैट इज़ हैपनिंग विल बी क्रूशल, बिकॉज ये बहुत minutely they are going to screen people, they are going to screen situations, they are going to find all the interconnections. The other day, I think the first day of the combing operation, 1000 नकली वोटर ID कार्ड्स तो मिल गए थे। तो जो लोग कहते हैं डेमोग्राफिक चेंज नहीं हो रहा है, या ये पीसफुल इन्फिल्ट्रेशन है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, वो गलत है। क्योंकि किसको चाहिए होएगा फेक ID कार्ड, सो अब ये होएगा दैट दे हैव गिवन दिस टाइम, अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं, अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं, and then they will do what they do best, which is find them and take them in. And I think they will break the networks and find out about the networks that have been supporting this sort of conflict. ये conflict मेरे को नहीं लगता है कि इसमें कुछ other hand नहीं है। अच्छा, मेरे को लगता है that काफ़ी indications हमको मिल चुके हैं that there are outside influences, whether it's the voter ID cards that we found, whether it's the photographs that we've seen of people in lungis, whether it's what we've seen, whether, the make of the weapons, तो चाइना या China, मोस्टली चाइना China's always, of course, मैं कैसे सर्टन हो सकती हूँ, मगर हिस्ट्री टेल्स अस दैट स्टोरी ना, क्योंकि दे हैव बीन फंडिंग ऑल दीज कैंप्स, जो इंसर्जेंट्स हैं उनको फंड करते हैं, ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंसर्जेंट्स, नागा हो, मिजो हो, कोई भी, उनको क्या फर्क पड़ता है, they, for them there is a one point agenda, to create some amount of disturbance, on the frontier, and this is an easy frontier to poke because sentiments, emotions इतने high हैं, that is why I keep repeating that civil society को ही समझना पड़ेगा, आज चाइना है, कल कोई और देश होएगा, नुकसान तो आपका ही हो रहा है ना, नुकसान तो आपका ही हो रहा है। तो हम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम हमारे फोर्सेस पे डाल दें, ये कैसे चलेगा? You have to take personal responsibility for your actions or the actions of your family members as well, and that goes for all communities, not just the Kukis. It goes for the Meiteis also, it goes for the Sanamahis also, it goes for everybody. सबको ही आना पड़ेगा, yeah, because it's your state. मगर yes, again coming to the moot point, किसी का भी कुछ भी डिमांड करना है, इससे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। खाली वो प्रोटेस्ट, वो डिसेंट आप एनार्की में नहीं बदल सकते हो। मैंने प्रोटेस्ट देखे थे जिसमें इट वाज सोल्यूशन फर्स्ट पीस लेटर। आप स्टेट को, यू विल होल्ड द स्टेट ऑन टू रैंसम, और स्टेट ये होने देगा क्या? सो ये सब है ना, लोगों को मिसगाइड किया गया है, लोगों को प्रॉप अप भी किया गया है, और बेचारे समटाइम्स यंग होते हो तो आप में जोश होता है, तो आपको लगता है ये सब कहना सही है, मगर आपको कहाँ से वॉर ऑफ परसेप्शन में आपको कहाँ से विक्ट्री मिलेगी अगर आप ऐसे चीज़ें कहोगे कि सोल्यूशन फर्स्ट पीस लेटर। सही बात है। रामी जी, बहुत अच्छा लगा, काफ़ी डिटेल्ड में हमारा डिस्कशन हुआ और काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिली नॉर्थ ईस्ट के बारे में, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हम मिलते रहेंगे।
made your point, Professor Swan. You have made your point. Let me turn to Professor